Praise God. Greetings to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह का मीठा और मधुर नाम में once again we welcome you all. We'll go into the Word of God. हम परमेश्वर का वचन में जाएंगे. Does anybody remember where did we stop last time? हमने कहाँ पर खत्म किया था? What book we are studying from? Hebrews. What chapter we were studying from? 12. 12. Right? Where did we stop? 18 to 20. We studied up to 24. Last में हमने देखा था why Jesus' blood is better than Abel's blood, right? Abel का लहू से उत्तम लहू यीशु का है. That is where we stop. So we'll study further. हम उसके आगे थोड़ा देखेंगे. Now the book of Hebrew is all about better, right? ये शब्द हमेशा आता है अच्छा है, इससे बढ़कर है, right? The better. What other betters we saw? उसका एक अध्याय से लेकर every chapter has something better, right? The author of the book of Hebrew वो जो पुराना नियम और उसके जो लोग हैं उससे कंपेयर करता है through Jesus. यीशु और जो नया covenant is better covenant than the old covenant. So ऐसी कौन सी बातें हैं that we saw that it is better? We saw Jesus is better than angel, right? In the first chapter हमने क्या देखा था? is better than or superior to angels. वो स्वर्गदूतों से उत्तम है. Then in chapter 3 हमने क्या देखा था? Jesus is better than Moses. वो मूसा से उत्तम है. Then in chapter 4 हमने क्या देखा था? is better than Joshua. वो यहोशुआ से is better. Then we saw that in chapter 5 क्या देखा था? He is better than the Old Testament high priest. जो Old Testament का high priest है, he is better high priest than the Old Testament high priest. Then हमने क्या देखा था? किसी को कुछ भी याद नहीं है. The covenant, the new covenant is better than the old covenant. उसके बाद हमने क्या देखा था? The resurrection, we will get better resurrection than those in the Old Testament. Those who they had a limited understanding about the resurrection. उनको जो पुनरुत्थान के बारे में या मरे हुए में से जी उठने के बारे में जो वो लोग जानते थे, we have now after Jesus died and rose from the dead, जब यीशु मरा और जी उठा, we have better understanding about this resurrection. It is इसलिए वहां पे लिखा है it is the better resurrection. Then और क्या better था? Better hope, एक उत्तम आशा, better covenant, better blood जो हमने अभी देखा. Jesus' blood is better than the blood of Abel. सब बहुत सारा better घर में जाके ढूंढना. Jesus is better mediator than Moses. ऐसा करके भी there are couple of scripture. So let's read from verse 26 onwards. Hebrews chapter 12. Read from verse 25 onwards. In fact 25 वचन से उसको नीचे पढ़े. सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर की चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी करने वाले से मुंह मोड़कर बच सकेंगे. 26. उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, और अब उसने यह प्रतिज्ञा की है कि एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी को नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा. और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती है वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहे. इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से न जाने दे, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है. I think that's where we will stop. In fact, we'll stop the part 1 of verse 28. So we read from verse 25 to 28. उसका 25 वचन से हमने पढ़ा. Now the writer जो लिखने वाला है वो कहता है सावधान रहो. Now the book of Hebrew also has 6 to 7 different warnings. उसके अंदर warnings भी है. We see better, अच्छा है. That word we see. साथ ही साथ एक चैप्टर के अंदर we see the warning. For example, chapter 2 के अंदर there was a warning. अगर हम ये बड़ा उद्धार से अगर if we neglect Jesus, अगर हम यीशु को neglect करते हैं, हम इस उद्धार को हम neglect करते हैं, how can we escape from the wrath of God? हम परमेश्वर का wrath से हम कैसे बच सकते हैं? Then in chapter 3 there was a warning कि do not harden your heart. अपने हृदय को कठिन मत करो जैसा इस्राएली लोगों ने कहा था. Right? Then एक बार तुम यीशु का अनुग्रह का स्वाद चख चुके हो. If you have tasted the grace of God one time,
डू नॉट फॉल बैक, उससे पीछे मुड़ने की अब तुम्हें जरूरत नहीं है। गो फॉरवर्ड, तुम उस विश्वास के कर्ता और उद्धार के कर्ता को ताकते हुए तुम आगे बढ़ते जाओ। ऐसा करके करके देयर आर सो मेनी वार्निंग्स, बहुत सारी वार्निंग्स है, राइट। दोज हु ट्रैम्पल द ब्लड ऑफ जीसस, जो यीशु का लहू को अपना पांव तले रोनता है, उसके लिए देयर इज नो मोर सैक्रिफाइस लेफ्ट, उसके लिए और कोई बलिदान बाकी नहीं है। दैट इज इन चैप्टर 10। देन इन चैप्टर 12 अनदर, दिस इज अ वार्निंग, वो कहता है सावधान रहो, उस कहने वाले से मुंह ना फेरो। सी दैट यू रिफ्यूज नॉट हिम दैट स्पीकeth। सो हु इज स्पीकिंग नाउ? अभी कौन बात करता है? रिमेंबर Hebrews chapter 1 verse 1, वो कहता है परमेश्वर ने हमारे बाप दादा से थोड़ा थोड़ा करके बात किया, बट इन द एंड टाइम गॉड इज स्पीकिंग टू यू एंड मी थ्रू Jesus Christ, through his son God is speaking to me, to you and me. तो कहता है see that you refuse not him that speaketh. In the present time who is speaking? Jesus Christ. यीशु मुझसे और आपसे बात करता है। How does he talk to you and me? वो भी हमने देखा था, right? How does God speak to us? Through his word, उसके वचन के द्वारा। Then we saw through prayer, जब हम प्रार्थना करते हैं, ना केवल हम परमेश्वर से कुछ बात करते हैं, बट वी हैव टू वेट एंड लिसन फ्रॉम गॉड, हम परमेश्वर से सुनते हैं, राइट। एंड सो वी सॉ लॉट ऑफ वेज दैट गॉड स्पीक टू अस, बट सी दैट यू डू नॉट रिफ्यूज हिम, बिकॉज दे डिड नॉट एस्केप टू रिफ्यूज हिम दैट स्पोक ऑन द अर्थ। इस्राएली लोगों का मीडिएटर कौन था? मध्यस्थ कौन था? मूसा। हमने लास्ट टाइम देखा था, राइट। तो क्या कहते हैं? परमेश्वर तू हमसे बातचीत ना कर, लेट मोसेस बी द मीडिएटर फॉर अस। क्योंकि जो परमेश्वर जो सिनाई पर्वत के ऊपर आया, वो कांपने लगा और कहने लगा, ये जो दृश्य हमने देखा है, हम बहुत डरते हैं, वी डोंट वांट टू हियर डायरेक्टली फ्रॉम गॉड, हम परमेश्वर से सीधा सुनना नहीं चाहते। मोसेस, यू लिसन फ्रॉम गॉड, तू परमेश्वर से सुन, एंड देन यू टेल अस व्हाट गॉड इज टेलिंग अस। परमेश्वर जो बोलना चाहता है वो मूसा के द्वारा हम। सो व्हेन मोसेस स्पोक, इस्राएलाइट डिसोबेड। जो अर्थली आदमी है, जो वो कहता है कि क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर नहीं बच सका। गॉड वॉज अबाउट टू डिस्ट्रॉय द चिल्ड्रन ऑफ इसराइल। वो उसको कई बार, जब व्हेनेवर दे डिसोबेड, एक बार वो मूसा को कहता है, मैं ये सब जाति को नष्ट करूंगा, and I'm going to raise a generation from you. मैं तुझसे एक जाति बनाऊंगा। And that time Moses interceded. वहां पर हम देखता है मूसा इस्राएली लोगों के लिए परमेश्वर से मध्यस्थता करता है, and God spare their life. परमेश्वर उसको जाने देता है। Likewise, they did not escape. Many times they died. They rebelled against God. They rebelled against Moses. And many times they died. Moses ordered Levites, जितना भी लीवाई था उसको ऑर्डर किया, and one day, on that one day, एक ही दिन में 3000 इस्राएली लोग मर गया। So they did not escape when they refused him who spoke from the earth. जो पृथ्वी पर से बात किया, उसकी आज्ञा को नहीं मारा, वो लोग मर गया। Then how can you escape the one who speak from the heaven? तो स्वर्ग से बोलता है, आप उसका आवाज को नहीं सुनता, उसका वचन के मुताबिक नहीं चलता। How can you escape? Right? Jesus said, I am the bread. What does this Lord's Supper show you? Lord's Supper क्या दिखाता है? यीशु ने क्या कहा? I am the bread that came from heaven. ये स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी मैं हूं। जो इसको खाता है उसके अंदर जीवन है, जो नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। That is why he is the one who speak from the heaven. Much more shall not we escape if we turn away from him that speaketh from the heaven. This morning जब आप ये वचन को सुनता है, you have to realize, आप अपने आप को एग्जामिन करें। You hearing from this God? आप क्या आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं? क्या आप उससे सुनता है? ये वचन को सुनता है, उसके मुताबिक चलता है? There is no escape. It's a warning. There is no escape if you refuse the one who is speaking from heaven. I'm not going to spend more time onto this, but go to the next verse, verse 26. उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, और अब उसने यह प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी को नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा। उस समय उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया। Where do we see this? ये कहां पर देखते हैं? उस समय उसने पृथ्वी को हिला दिया।
दिस इज टॉकिंग अबाउट द ओल्ड टेस्टामेंट। जब मूसा के द्वारा बात करता था, मूसा से बात करता था, उस समय परमेश्वर ने एक बार पृथ्वी को लाया था। कहां पर हम देखता है? टू एक्सोडस चैप्टर 19। अगर आपने लास्ट टाइम ध्यान से पढ़ा होता तो यू विल रिमेंबर एक्सोडस चैप्टर 19, निर्गमन की पुस्तक, उसकी 19 अध्याय, उसका 18 आयत को कोई भी व्यक्ति पढ़े, वर्स 18। एक्सोडस चैप्टर 19 वर्स 18। रिमेंबर, ये लास्ट टाइम हम देख चुका है। गॉड केम डाउन ऑन तीसरे दिन, उसने क्या कहा था? 3 दिन, आई एम गिविंग यू 3 days, 3 दिन में देता हूं, प्रिपेयर योर सेल्फ, अपने आप को तैयार करो, तेरा बीच में जितना याजक है वो भी अपने आप को शुद्ध करे। देन थर्ड डे आई एम गोइंग टू डिसेंड ऑन माउंट साइनाई, तो तीसरा दिन मैं सिनाई पर्वत का ऊपर उतरूंगा। एंड दिस इज अबाउट दैट इंसिडेंस, वर्स 18। प्लीज रीड वर्स 18। तो आदमी होकर सिनाई पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्ठे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। समस्त पर्वत, द होल माउंट क्लैप्ड ग्रेटली। वो पर्वत उस टाइम बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड इट वॉज शेकिंग, वो कांपता था। बट द राइटर हियर द बुक ऑफ हिब्रू को जो लिखने वाला है वो कहता है, परमेश्वर कहता है एक और बार मैं पृथ्वी को हिलाऊंगा। एंड दैट इज अ प्रोफेसी गिवन बाय अनदर ओल्ड टेस्टामेंट प्रॉफिट दैट हिज नेम इज हागाई। उसका कितनों को पता है हागाई का बुक कहां पर आता है? कितने लोगों ने हागाई का पुस्तक पढ़ा है? क्यों ना करा? कितने चैप्टर है उसके अंदर? ओपन हागाई चैप्टर 2 वर्स 6, दैट इज वेयर ही इज टेकिंग दिस स्क्रिप्चर फ्रॉम। 2 ही है उसके अंदर, आई थिंक। हागाई चैप्टर 2 वर्स 6। सेनाओं का यहोवा जो कहता है, थोड़ी देर ही बाकी है, मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंप्लीट करूंगा। अब थोड़ी देर बाकी है, मैं आकाश, पृथ्वी, समुद्र और स्थल सबको कंप्लीट करूंगा। एंड देन इफ यू रीड इनटू द कॉन्टेक्स्ट, वो कहता है मैं तुम्हें शांति दूंगा। इन द एंड टाइम्स आई एम गोइंग टू गिव पीस। क्योंकि अब हागाई कब लिखता है? ये हागाई का पुस्तक कब लिखा गया है? इज नॉट माई सब्जेक्ट, बट ये तब लिखा गया है जब इस्राएली लोग बेबीलोन का बंदीवास से वापस आया। एंड जब वो लोग देखता है कि वो मंदिर जो है वो टूटा फूटा पड़ा हुआ है, the temple was destroyed, तब वो परमेश्वर उससे कहता है देखो ये तो टूटा पड़ा हुआ है। हागाई के द्वारा वो उनसे बात करता है कि इसका पुनर्निर्माण किया जाए, नो लेट्स रीबिल्ड द टेम्पल। और जब वो बोलता है, उसको कहता है कि देखो इसका सोलोमन ने जो टेम्पल बनाया था, जो लोग ने उसका ग्लोरी को देखा था, लुक एट द ग्लोरी नाउ, अब देखो ये उजाड़ पड़ा हुआ है। वो कहता है अंत के टाइम में आई एम गोइंग टू रीबिल्ड द टेम्पल, ये फिर से मंदिर बनेगा और जो पिछले वाला मंदिर है, जो आने वाला मंदिर है, उसका ग्लोरी विल बी मच मोर देन द ग्लोरी ऑफ द सोलोमन्स टेम्पल। जो सोलोमन का टेम्पल है उससे अधिक ग्लोरी होगा। एंड देन उस टाइम में वो कहता है आई एम गोइंग टू शेक वन मोर टाइम द हेवंस एंड द अर्थ, वो स्वर्ग और पृथ्वी को एक और बार मैं हिलाऊंगा। What does this mean? I'm going to give you a couple of verses so that you understand the context of this. Go to Isaiah chapter 24. Isaiah chapter 24, यशायाह नबी का किताब, उसका 24 अध्याय, उसका 18 आयत से नीचे पढ़े। Isaiah chapter 24 verse 18 onwards. तो कोई भय के शब्द, In fact, read from 17, 17 से नीचे पढ़े। हे पृथ्वी के रहने वालों, तुम्हारे लिए भय और गड्ढा और फंदा है। तो पृथ्वी के ऊपर रहने वाले लोगों, तुम्हारे लिए भय और गड्ढा और फंदा है। कंटिन्यू रीडिंग। जो कोई भय के शब्द से भागे वह गड्ढे में गिरेगा और जो कोई गड्ढे में से निकले वह फंदे में फंसेगा। क्योंकि आकाश के झरोखे के खुल जाएंगे और पृथ्वी की नींव डोल उठेगी। पृथ्वी का नींव डोल उठेगा। Now what time period that this is talking about? This is talking about the future prophecy during the time of tribulation. I'm going to give you a parallel verse from the New Testament. वो कहता है जो लोग परमेश्वर की नहीं सुनता, and those who have refused and rejected Jesus Christ to be the Lord and Savior when they are alive, if they are remained during the time of tribulation, अगर वो लोग जब विपत्ति काल आता है तब बचे रहेंगे, वो कहता है वो लोग इधर उधर भागेंगे फॉर द रेफ्यूज, बट दे विल नॉट फाइंड द रेफ्यूज। एंड उस टाइम में वो कहता है आकाश के झरोखे खुल जाएंगे, पृथ्वी की नींव डोल उठेगी और पृथ्वी अत्यंत कंपायमान होगी। कंटिन्यू रीडिंग अप टू वर्स 20। मत वाले की
नाई बहुत डगमगाएगी और मचान की नाई डोलेगी, वह अपने पाप के बोझ से दब कर गिरेगी और फिर न उठेगी। This world, the whole world that you see, which has been created, once again God is saying that it will be shaken. वो एक और बार शेक किया जाएगा. क्यों किया जाएगा? I'm going to explain you further after giving you these references. Go to Revelation chapter 6. प्रकटीकरण उसका 6 अध्याय और उसका 12 वचन से नीचे पढ़े. यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट. क्यों वो हिब्रू लिखने वाला कहता है एक और बार ये हिलाया जाएगा. एंड दिस इज पैरेलल. ये पैरेलल है जो आइज़ाया में पढ़ा. दिस इज द फुलफिलमेंट ऑफ इट. प्लीज रीड वर्स 12 onwards. जब उसने छठवीं मोहर को So Revelation is about the 7 seal judgment and then 7 trumpet and then 7 bowl judgment. तो ये कब का है? 7 सातवीं मुहर. जब 7वीं मुहर को खोला तब का. दिस इज द जजमेंट. सो बाय दिस टाइम द चर्च इज ऑलरेडी इन हेवन. रैप्चर इज ऑलरेडी डन. नाउ जो पृथ्वी का ऊपर जो बचा हुआ लोग है, दिस इज द जजमेंट ऑन दोज पीपल. ये उनके ऊपर का जो जजमेंट है. व्हाट इज द कंडीशन ऑफ दोज पीपल हु आर लेफ्ट बिहाइंड, हु हैज रिजेक्टेड क्राइस्ट, जिसने यीशु का नहीं माना. दोज हु हैव नेग्लेक्टेड दिस सैल्वेशन, जिसने उसका उद्धार को नहीं अपनाया. These people are the people who have left behind. Now look at what is happening here. Please read verse 12. वो कहता है जब उसने छठी मुहर खोली, मैंने देखा कि एक बड़ा बूंद हुआ और सूर्य कंबल की नाई काला, पूरा चंद्रमा लहू का सा हो गया. एक बड़ा भूकंप. Now the people who are left behind, just look at the condition of them. उसका कंडीशन क्या है? Read verse 15 onwards. वचन से नीचे पढ़े. राजा और प्रधान और सरदार. See, everybody is there. For God's judgment, there is no difference. Whether you are king, whether you are president, whether you are rich, whether you are poor, God's judgment is same. Just like God's mercy is same. जिस प्रकार परमेश्वर का दया सबके ऊपर है, उसका अनुग्रह सबके ऊपर है, उसी प्रकार उसका जजमेंट, देयर इज नो डिफरेंस. वो कहता है वहां सब प्रकार के लोग हैं. राजा, प्रधान, सरदार, धनवान, सामर्थी, दास, तंत्र. वहां जाकर छिपाओ. दे आर हाइडिंग देमसेल्फ फ्रॉम द जजमेंट ऑफ गॉड. एंड वो क्या कह रहा है? कंटिन्यू रीडिंग 16. पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसकी मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो. They are saying, let there be an avalanche. पत्थर मेरा ऊपर गिर पड़े. We would rather die from an avalanche. हम पत्थर के गिरने से मरना ज्यादा पसंद करेंगे rather than to face God's judgment. परमेश्वर का न्याय से अधिक हम ऐसा मृत्यु को पसंद करेंगे. कंटिन्यू रीडिंग. यू विल अंडरस्टैंड वो क्या कहना चाहता है. उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है. अब कौन ठहर सकता? Now who can stand the wrath of the Lamb of God? वो कहता है हमें उसका मेमने का प्रकोप से छिपा लो. ये पत्थर हमारा ऊपर गिर पड़े. There is no way to escape. That means that the judgment of God is for sure. परमेश्वर का न्याय होना वो निश्चित है. We live in the time where everything is changing. ऐसा जगत में रहता है जब सब चीजें, there is nothing for sure. The government is not for sure. The peace is not for sure. शांति आज है कल नहीं है. The treaty that the nation make with the nation, that can break any time. वो कभी भी टूट सकती है. There can be wars, there can be famine, there can be persecution. Nothing is for sure. There is no guarantee, there is no warranty. Everything is, we live in this shaken world. There is one thing which is for sure that is going to happen. एक चीज जो sure है, that is the judgment of God. There is one thing that will stand forever, and that is the kingdom of God. That is what we will see. I'm going to give you one more. Go to the book of Revelation chapter 16. 16 अध्याय के अंदर जाए. Please read verse 18. उसका 18 आयत को पढ़े. Now this is an eschatology. This is about the study of the end time. This is not my focus, but I am giving you this parallel scripture so that you understand. तो writer, the book of Hebrew का जो writer है, what is he talking about? वो क्या चीज के बारे में बता रहा है कि वो जब वो कहता है कि मैं एक और बार पृथ्वी और स्वर्ग को हिलाऊंगा जैसा मैंने पहले किया था. What he means by that? वो क्या कहना चाहता है? Please read verse 18.
और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा भूकंप हुआ. There was a great earthquake. Now the one that you saw in Revelation 6, that was just the beginning, during the beginning of the tribulation period, जो विपत्ति काल का शुरू के अंदर होता है. But this is the great earthquake. वहां पर लिखा है such was not seen man there upon the earth. जो पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं उन्होंने कभी ऐसा भूकंप देखा नहीं होगा. This is that great earthquake, so mighty an earthquake, and this is towards the coming of Jesus, towards the end of the tribulation. वो tribulation खत्म होने वाला है, and now the coming of Jesus is very near. और उस समय के दौरान this is another earthquake happening. Remember, Jesus spoke about this during his ministry. The Revelation, how is John writing the Revelation? Who is speaking? God is speaking, right? प्रकटीकरण का पहला चैप्टर, उसका पहला अध्याय में वचन के अंदर देखेगा तो वो क्या कहता है? दिस इज द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट. इसका प्रकटीकरण है, यीशु का प्रकटीकरण है. इसके द्वारा दिया गया. गॉड द फादर, गॉड गेव द रेवलेशन थ्रू एन एंजल टू जॉन. जो अपोस्टल को दिया हुआ ये रेवलेशन है. बट जीसस ऑलरेडी स्पोक अबाउट दिस. आई एम गोइंग टू गिव यू कपल ऑफ वर्सेस. गो टू मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 7 and 8. मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 7 and 8. ये किस चीज की बात है? कब यीशु बोलता है? दिस इज द ओलिवेट डिस्कोर्स. माउंट ओलिव का ऊपर वो चैप्टर 24 and 25 is called the Olivet Discourse. That is where Jesus is talking about the end time. वो अंत के समय के बारे में बोलता है. Please read verse 7 and 8. जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूल होंगे. ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी. When the earthquake happening during the tribulation, वो कहता है this is just the beginning. This is the beginning of sorrow. इसका एक पैरेलल है. गो टू जॉन चैप्टर 16. जॉन चैप्टर 16 वर्स 21 ऑनवर्ड्स. जब स्त्री जन्मने लगती है तो उसको शोक होता है. When a woman, when she is going through the birth pain and those contraction happen, जो birth pain, nobody wants that pain. किसी को भी वो पेन नहीं चाहिए. That is a horrible pain that a woman go through. But John is saying, जब वो बर्थ हो जाता है, when a child is actually born, nobody remembers the sorrow. वो दुख और वो पीड़ा को कोई याद नहीं करता है. Because a child is born, everybody is joyful. वो बच्चे का जन्म से एक आनंद होता है. God is saying that I'm going to shake the earth. The world may be going through chaos. आज अगर देखतेगा तो there is no peace in the world and there is chaos all around the world. Nobody is happy. Everybody is looking for a peace. But when God is saying, I'm going to shake the earth one more time, एक और बार मैं ये धरती को हिलाऊंगा, that is the beginning of a birth pain. Because at the end, God is going to restore His kingdom. उसका अंत में परमेश्वर उसका राज्य को स्थापित करेगा. Right? This is the world that we live in. जो आज ये जो पृथ्वी है, we chose it. This was not the design from God. परमेश्वर का ये डिजाइन नहीं था. God kept Adam and Eve, कहां पर रखा था उसको? In a paradise. एडनवाड़ी में उसको रखा था. That was equal to paradise. But because of the sin and disobedience, biblically speaking, all these calamities that we see throughout the world, we chose this world. We can see that why California has a fire, why there are some tsunamis happening, why there are earthquakes happening all around the world, and every time there is a natural disaster happening, kahin na kahin there is a natural. This is it is the main reason, biblically speaking, is the sin. The earth is also cursed. In fact, I'm going to give you this final verse about the earthquake. Go to Romans chapter 8, and this will give you a much more clear idea. Romans chapter 8. Please read verse 21-22. इस सृष्टि की आखिरी विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी. 22. हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराती और Now we know that the whole creation groaned and traveleth in pain together until now. जैसा हम ये शरीर में रहता है, we have pain. हमारा शरीर के अंदर डिसीज आता है,
पेन होता है, सफरिंग, वी गो थ्रू इट, वी डोंट वांट दिस पेन, वी वांट अ बेटर लाइफ, वी वांट टू लिव फॉर इटर्निटी। कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता, नोबडी वांट्स टू फेस डेथ। कोई नहीं चाहता उसके अंदर डायबिटीज हो, कोई नहीं चाहता कि किसी के अंदर ब्लड प्रेशर हो, नोबडी वांट्स कैंसर, बट वी गो थ्रू इट बिकॉज ऑफ द सिन एंड वी आर इन द लाइकनेस ऑफ द सिनफुल फ्लैश। क्योंकि हम ये शरीर का अंदर रहता है, दिस बॉडी इज कर्स्ड because of sin. Similarly, the earth, the creation is also cursed. The reason why the natural disasters are happening, part of the reason is because of this. But वो कहता है, just like us, कि हम एक glorious body चाहता है, we want a resurrected body. हम ऐसा body चाहता है जिसके अंदर कोई disease ना हो, कोई पाप ना हो, and there is no decay. Similarly, the whole creation groaneth and traveleth in pain together until now. God is saying, I'm going to shake the earth one more time. वो कहता है मैं फिर से एक और बार अर्थ को हिलाऊंगा. Now go back to Hebrews chapter 12. You will understand the context of it. Read verse 27. Hebrews chapter 12. Yeah. हाँ. ये इस बात को प्रकट करता है, हाँ, जो वस्तुएं हिलाई जाती है, होने के कारण टल जाएगी, बिकॉज दे आर क्रिएटेड थिंग्स. द वर्ल्ड इज क्रिएटेड. जो कुछ दिखता है आपको वो सब बनाया हुआ, वो सृजा हुआ है. गॉड हैज क्रिएटेड दिस, लाइक यू एंड मी, वी आर ऑल्सो क्रिएटेड. जो वस्तुएं बनाई गई है वो फिर से एक और बार वो कहता है वो टल जाएगी. एंड जो वस्तुएं नहीं जाती, अटल मनी. जो वस्तुएं, द थिंग्स विच आर अनशेकेबल, they will remain forever. ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हिलाई नहीं जा सकती? What are the things which are unshakable? God's kingdom, right? He is talking about God's kingdom. उसके बारे में कहता है कि इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो टलने वाला नहीं है तो तक न हो. So one of the thing is kingdom of God. परमेश्वर का राज्य जो कि लाया नहीं आ सकता. रिमेंबर अब्राहम, वो अब्राहम के बारे में लिखा है, अब्राहम वॉज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ सिटी. वो उस राज्य के बारे में देखता था whose maker and builder is God. Right? We saw that. Hebrews 11, उसके अंदर लिखा है, he was looking for the city whose maker and builder is God. Then in same Hebrews chapter 13, उसका 14 आयत के अंदर पढ़िए, Hebrews chapter 13 verse 14. क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में है. This is not our citizenship. This is not the permanent place that a child of God live. आप यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं रहने वाला. You will live for some time, maybe 70, 80, 100 years. उसके बाद you will die. आप एक ना एक दिन मरेगा. But God has prepared a place for you. अगर आज आप मरता है, you will live with him if you are a child of God. अगर आप परमेश्वर का बेटा और बेटी है, आप उसके साथ हमेशा रहेगा. That is the kingdom of God. वो कहता है ये हमारा कोई, for here we have no continuing city, but we seek one to come. We are looking forward for that city to come. We are looking forward that kingdom of God to come. What are the other things that cannot be shaken? ऐसी कौन सी और चीजें हैं जो, what Psalms did we read today? कौन सा भजन संहिता पढ़ा? 45. कौन सा वचन हमने साथ में पढ़ा? 6. Please read verse 6. Psalms 45 verse 6. परमेश्वर तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा, तेरा राज धर्म न्याय का है. What is the other thing that cannot be shaken? Thy throne, O God, is forever and ever. What does the throne of God show? That he is ruling. No matter what is happening, no matter whether Donald Trump is the president or Biden is the president, whether Democrats are ruling or Republicans are ruling, whether there are wars happening in Middle East or between Russia and between Ukraine, how much ever up and down happening, God is still on the throne. परमेश्वर उसका सिंहासन. That means God's throne is forever. That means that God is in control. Events happening around us, God is in control. You, a child of God, have an assurance. एक परमेश्वर का बेटा और बेटी को ये assurance है that my God live. मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है.
He is still on the throne. That doesn't mean when we say he's on the throne, he's not like a literal king who is sitting on a throne. वो कोई गद्दी के ऊपर. God is a spirit. The word used, the throne, is a metaphor. हमने Friday का Bible class, we are studying about the human element within the Bible, and this is one of the metaphor. परमेश्वर उसका राज गद्दी का ऊपर है. That means that he is in control of all the events happening. What is the other meaning of God is on the throne? It shows that God himself. Please read Hebrews chapter 1 verse 10 to 12. Hebrews chapter 1 verse 10 to 12. और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है. The स्वर्ग तेरा हाथों का रचना है. Whatever things that we see, that is a created things created by God. वो परमेश्वर का बनाया हुआ, सृजा हुआ रचना है. Continue reading. देखो नाश हो जाएंगे. This will be destroyed. When that earthquake happens, the great earthquake जो हमने देखा Revelation 16, this whole world will be destroyed one day. We will die. But continue reading. परंतु तू बना रहेगा. Remember that God's throne, it is showing that God himself is forever. That is why we can put our trust in him. इसलिए हम उसका ऊपर भरोसा रख सकता है, because he is forever. He is the creator of heaven and earth. वो आकाश और सृष्टि का. He is the creator of you. उसने आपको और मुझको बनाया है. He is, वो कहता है, उन्हें चादर के समान लपेटेगा और वस्त्र के समान बदल जाएंगे, पर तू वही है और तेरा वर्षों का अंत नहीं होगा. You are there for the eternity. Throne. God's throne also shows his grace and his judgment. उसका अनुग्रह और आने वाला न्याय को भी उसका सिंहासन, उसका जो राजगद्दी है वो दिखाता है. That means that those who come to Christ with repentance, जो परमेश्वर के साथ पूर्ण रीति से पश्चाताप के साथ आता है, those who accept this Jesus Christ as the Lord and Savior of their life, आपको अपना उद्धार करता और प्रभु करके जो उस यीशु को स्वीकार करता है, they will receive grace. उसका ऊपर अनुग्रह होगा. They will live with him into this kingdom, जो हमेशा बना रहेगा, the unshakable kingdom, उसके साथ हमेशा के लिए. But the throne of God also shows a judgment. वो न्याय को भी दिखाता है. Those who will reject him, those who will reject his salvation, जो उसका उद्धार को अपनाता नहीं है, they will face the judgment. उसका ऊपर न्याय बना रहता है. What are the other things that cannot be shaken? One, we saw the kingdom of God. The second, we saw his throne. What is the other thing that cannot be shaken? His words. उसका वचन. Right? कहाँ लिखा है? Psalms 119 verse 89. क्या कहता है? Your words are steadfast in heaven. Right? Jesus himself said. Go to Matthew chapter 5 verse 17 and 18. Matthew chapter 5 verse 17 and 18. यह न समझो कि मैं व्यवस्था था, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ. लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया. I came to fulfill the law. Next verse. मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी टीना पूरा हुए नहीं टले. जब तक आकाश, till heaven and earth pass, one jot or one little shall not wise pass from the law, will all be fulfilled. इस वचन में लिखा हुआ हर एक प्रॉमिस जब तक पूरा नहीं हो जाता, उसका प्रॉमिस क्या है? You will come. You will live with him for eternity. There will be a day of judgment. The heaven and hell is real. स्वर्ग और नरक is real. तब तक इसके अंदर से एक चीज पूरी नहीं हो जाती, एक एक चीज, मात्रा या बिंदु पूरा नहीं हो जाता. जब आकाश और पृथ्वी टल नहीं जाता, ये व्यवस्था से एक भी चीज चेंज होगा नहीं. Go to 1 Peter chapter 1. I'll give you one more reference. 1 Peter chapter 1. यहाँ पर वो कहता है verse 23, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज से परमेश्वर के जिंदा और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है. आपको एक नया जन्म पाना, ये लॉर्ड सपर का अंदर शामिल होना, ऐसा आप नया जन्म पा सकता है बाय दिस वर्ड ऑफ गॉड, वचन के द्वारा, जो कि कभी भी
बदलने वाला, नाशवान नहीं, सदा ठहरने वाला ये जिंदा वचन के द्वारा, दैट इज अ लिविंग एंड पावरफुल वर्ड ऑफ गॉड, जो परमेश्वर ने आपके लिए दिया है, इसको पढ़कर, वो वचन को अपना जिंदगी में अपनाकर, उसका आज्ञा को मानकर, then that is how you have received a new birth, born again. But then verse 25 कहता है, please read verse 25, same chapter, verse 25. प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा, और यह ही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया। यही सुसमाचार का वचन है. This is the gospel. This is the good news that we are preaching you every Sunday. The word that is settled in heaven. तो स्वर्ग में स्थिर वचन है, वो वचन आपको हर एक संडे सुनाया जाता है. उसके द्वारा आप नया जन्म पा सकता है, उसके द्वारा आप परमेश्वर का करीब आ सकता है. वो कहता है प्रभु का वचन, द वर्ड ऑफ द लॉर्ड एंड्योर्थ फॉरएवर, एंड दिस इज द वर्ड which by the gospel is preached unto you. That means all promises you can trust. बाइबल का अंदर जितना प्रोमिसेस है, आप उसके ऊपर 100% भरोसा कर सकता है. That means all prophecy in the scripture are true, which are going to be fulfilled. वो पूरा होने वाला है. What are the other things that cannot be shaken? ऐसी और कौन सी चीज है जो कि चल नहीं सकती? That is judgment, because God doesn't change, his judgment also doesn't change. I'll give you church of God, right? यहाँ पर हम देखते हैं उसका कलीसिया चल रहेगा. यीशु ने पूछा अपने चेलों से, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? Then they said, किसी ने कहा कोई तुम्हें कहता है you are a prophet, कोई कहता है you are Elijah, कोई कहता है you are John the Baptist. Then Jesus asked, what do you say? पतरस क्या कहता है? You are the son of a living God, you are Christ. तू मसीह है, जिंदा परमेश्वर का पुत्र. Then Jesus said, ये बात तुझे मांस और लहू ने नहीं, बट मेरा पिता ने तेरा ऊपर रिवील किया है. What does the verse 18 says? Matthew chapter 16 verse 18. Jesus said, on this rock, तेरा नाम पतरस है, इस पत्थर का ऊपर मैं एक कलीसिया बनाऊंगा, जो कलीसिया कभी भी चलेगा नहीं. That foundation, the church cannot be shaken. When Jesus said the church cannot be shaken, it doesn't mean that this body of or ये building है. He's not talking about this building. Building का बारे में नहीं बोलता है. He's talking about the bride of Christ, जो परमेश्वर का दुल्हन है. The body of Christ, जो परमेश्वर का शरीर है. Right? ये ब्रेड क्या है? परमेश्वर का शरीर है. यीशु कहता है ये ब्रेड, जो शरीर जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है. The real church is the body of Christ. तो परमेश्वर का शरीर अपना लहू से खरीदा हुआ जो लोग है. That means who cannot be shaken? When he says the church cannot be shaken, that means that those who are living their life fully in the obedience of the Lord, परमेश्वर का आज्ञा के मुताबिक अपने आप को समर्पित करते हुए अपना जिंदगी बिताता है, that church cannot be shaken. वो कलीसिया कभी भी हिला. The church can go through liberal views, right? Some churches go towards the liberal views. They can change their policies on marriage and this and that. Maybe you have seen that bishop, the viral video जो उसने on the cathedral, she spoke, right? You know, just give grace, act gracefully towards LGBTQ and this and that. She said it's in viral news right now. The church can go, but the body of Christ, the bride of Christ, those who are living fully to the Lord, जिसने अपना जीवन को परमेश्वर का हाथ में दिया है, those who are living according to the will of God, that people cannot be changed. वो कभी भी बदल नहीं सकता. There is one more thing that cannot be shaken. एक और चीज है जो कि हिलाई नहीं जा सकती. What is that? वो क्या है? True believer, एक सही माने में विश्वासी. To John chapter 10 verse 28. John chapter 10 verse 28. और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, और वे कभी नाश न होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा. Who are these people? किसके बारे में वो बोलता है? If you read that into the context, वो कहता है तुम मेरी भेड़े हो, मेरा भेड़ मेरा शब्द सुनती है. So those who hear the word of God, जो उसका शब्द सुनती है, जो उसके मुताबिक चलती है, उसके लिए यीशु कहता है वो मेरे पीछे चलती है, मैं उसे अनंत जीवन देता हूं, वो कभी नष्ट होगी नहीं होगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं लेगा. They will receive an eternal life. I am going to give them
an eternal life. Let's go towards the conclusion of it. What is the fact of the matter? Go to 1 John chapter 5, verse 11 and 12. 1 John chapter 5. Again, this is the scripture that we discussed on the Friday. Ye Friday ka din. This is the scripture that we saw. 1 John chapter 5 from verse 1 to 6. There are three that gives testimony on earth. उसके बारे में हमने देखा था. In the same chapter, verse 11 and 12. Please read verse 11 and 12. और वह गवाही यही है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है। ये जीवन कहाँ है? उसका पुत्र में। In his son is the life. Continue reading. जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। उसके पास जीवन भी नहीं। He that has the son has the life and he is not the son of God has no life. उसके पास जीवन भी नहीं है। Those who have the son of God will participate in the Lord's Supper. Those who do not have will not participate in the Lord's Supper. God, the things that cannot be taken. आइए अपना सुना हुआ वचन के ऊपर हम मनन करें. I'm going to continue this next time also. There is some more thing that is left. जो सुना है हम उसके ऊपर मनन करें. परमेश्वर कहता है मैंने एक बार during the old time I have shaken the earth. मैंने पृथ्वी को हिलाया था, वो पर्वत हिलाया था. एक और बार I'm going to shake the heaven and earth. एक और बार मैं उसको हिलाऊंगा. हमने उसका वचन से देखा. During the end time there will be a great earthquake. एक बड़ा earthquake. But परमेश्वर का वचन कहता है that is the beginning of a birth pain. वो एक प्रसूता के समय जो एक पेन जैसा एक स्त्री वो पेन से होकर गुजरता है लेकिन एक बच्चे को जन्म देता है. और गुड थिंग देयर इज अ जॉय एट द एंड. परमेश्वर कहता है ये आकाश और पृथ्वी जो के बनाया हुआ हाथों का रचना है. द थिंग विच इज कर्स्ड मैं उसको एक और बार हिलाऊंगा सो दैट द किंगडम ऑफ गॉड कैन बी एस्टैब्लिश्ड ऑन द अर्थ. ताकि वो परमेश्वर का राज्य जो कभी टलने वाला नहीं है मैं उसको एस्टैब्लिश करूंगा. देयर विल बी पीस, देयर विल बी नो डेथ. वो मृत्यु नहीं है, वहां पाप नहीं है. देयर इज नो पेन. वी विल लिव विथ हिम फॉर इटर्निटी. हम उसके साथ अनंत जीवन बिताएंगे. दिस इज द प्रॉमिस फॉर दोज हु हैव क्राइस्ट, दोज हु हैव द सन. जिसके पास पुत्र है उसके पास अनंत जीवन है. उसका वचन टल नहीं सकता. It is steadfast in heaven. That means we can trust in the promise of God. हम उसका वचन के ऊपर भरोसा रख सकता है. That means that His judgment is going to happen one day. Maybe we are living in a world that is shaking and changing constantly. But God is going to establish His kingdom. अपना राज्य को स्थापित करेगा. That cannot be shaken. We saw that a believer, a child of God, someone who is a bride of Christ, that cannot be shaken. He will overcome the temptation. शैतान का temptation का ऊपर विजय पाएगा. The church of God, the real, the body of Christ, उसका लोग जिसको परमेश्वर ने अपना लहू से खरीदा है, जिसने अपना संपूर्ण जीवन परमेश्वर का हाथ में दिया है. Those who have accepted Jesus as the Lord and Savior of their life, अपना प्रभु उद्धारकर्ता करके अपनाया है, जो उसका आज्ञा के मुताबिक चलता है. Those people, that church of God cannot be shaken. Jesus said, I am yesterday, today, forever, I am the same. जो था, जो है, जो आने वाला है, जो कभी नहीं बदलता, वो परमेश्वर मैं हूं. That God wants to give you an eternal life. वो चाहता है आप उसके साथ रहे. वो चाहता है आप उसका अनुग्रह को अपनाए. वो चाहता है आप उसका salvation को अपनाए. Receive him. इसलिए हमने आज वो वार्निंग को पढ़ा. सावधान रहो. वो लोग जिसने वो पृथ्वी पर का था, a mediator, जिसने मूसा का नहीं सुना, उसने दंड पाया. How much more judgment upon those who will neglect the one speaking from the heaven. Jesus said, I am the bread which came from the heaven. स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी मैं हूं. जो मुझे खाएगा वो अनंत जीवन पाएगा. Let's examine ourselves. अब अपने आप को परखे. हमने उसको अपना उद्धारकर्ता करके अपनाया है. Did we receive this salvation? Are we walking? Are we doing the will of God? वो कहता है स्वर्ग के ये संसार और उसका बातें चला जाएगा. The word of God stands forever. उसका वचन कभी भी टलने वाला नहीं.